Hello everyone, welcome to sessions on environmental studies provided by IGNOU Dost. I am Dr. Shafila. Environmental studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session. Which one of the following statement is correct? Options are pyrolysis is an exothermic process which takes place in the absence of oxygen, or pyrolysis is an endothermic process which takes place in the absence of oxygen. C. Pyrolysis is an endothermic process which takes place in the abundance of oxygen, or combustion is an exothermic process which takes place in the absence of oxygen. देखो पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब होता है किसी मटेरियल को हीट करना एट एलिवेटेड टेम्परेचर बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ अ मटेरियल एट हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो हमारे पास ऑप्शंस में वी हैव टू वर्ड्स, वन इज एक्सोथर्मिक, वन इज एंडोथर्मिक। थर्म मीन्स हीट, सो एक्सोथर्मिक मतलब जब हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक मीन्स जब हीट यूज होती है। तो अभी डेफिनेशन में हमने कहा कि पायरोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल्स को, किसी मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं एट हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब वी आर गिविंग द हीट बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो आंसर वुड बी कि इट इज अ पायरोलिसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इसमें हीट दी जाती है which takes place in the absence of oxygen. So answer is B. Moving on to the question number 2. Sludge bulking can be controlled by. देखो sludge क्या है? Sludge is basically slurry, like mixture of आप कह लो liquid and solid waste जो भी है, ठीक है? So sludge is basically mixture of solid and liquid waste. Sludge आपकी mainly कहाँ से produce होती है? When you treat the waste water. सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद जो लेफ्ट ओवर मटेरियल नीचे सेटल डाउन कर रही जो स्लरी है बेसिकली, सो दैट इज स्लज। ठीक है, सो ब्लैक कलर का लिक्विड एंड सॉलिड जैसा कुछ जो है दैट इज स्लज। सो स्लज ज्यादा इकट्ठा ना हो, उसकी बल्किंग कम हो। स्लज में क्या है? इट इज फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो स्लज की बल्किंग ज्यादा ना हो, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑप्शंस आर क्लोरिनेशन, कोएगुलेशन, एरिएशन या फिर डीनाइट्रिफिकेशन। So denitrification मतलब है removal of nitrogen, aeration means giving of oxygen, coagulation means like to add some coagulants जो कि आपके जो suspended particulate matters हैं या suspended particles हैं उनको coagulate कर दे, इकट्ठा कर दे। ठीक है, and chlorination क्या है? To provide excess chlorine. So sludge की bulking ना हो, हम क्या करते हैं? sludge को extra chlorine देते हैं। ठीक है, ताकि जो आपके जो स्लज में आपके जो फिलामेंट हैं वो डैमेज हो जाएं, विच आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फ्लॉक। फ्लॉक में वी डू हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो वहीं पे इंटैक्ट रहते हैं, फ्लॉक एज इट इज रहता है, बट फ्लॉक से जो एक्सटेंड होता फिलामेंट है उसको डैमेज कर देता है व्हेन वी आर यूजिंग एक्स्ट्रा क्लोरीन। सो क्लोरिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन control the sludge bulking, especially in wastewater treatment process. So answer is A. Question number 3. Bangalore and Indore process of composting are which of the following? देखो composting process basically इंदौर या बैंगलोर का ये क्या है? The conversion of organic matter into compost. ठीक है, सो अगर हम बात करें इंदौर प्रोसेस की, वो है aerobic process. Aerobic means in the presence of oxygen. The conversion of organic matter into manure or compost in the presence of oxygen. And in Bangalore process, in the absence of oxygen, that is, it is an anaerobic process. So answer would be C. Bangalore and Indore process of composting are anaerobic process and aerobic process respectively. ठीक है, so answer is C. दोनों aerobic नहीं है, दोनों anaerobic नहीं है, दोनों एक इसमें से aerobic है, दूसरा इसमें से anaerobic है। The disposal of screen is done by. Screen आपकी क्या है? Screen is made of plastic. ठीक है, so screen का तुम ये कंप्यूटर स्क्रीन की भी बात हो रही है, तो स्क्रीन का तुम कैसे डिस्पोजल कर सकते हो? ऑप्शंस आर सेडिमेंटेशन, फ्लॉकुलेशन, फिल्ट्रेशन या इंसिनरेशन। देखो डिस्पोजल करने की बात हो रही है, अगर मैं सपोज मेरे पास वेस्ट वाटर है, ठीक है, सो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का
मेरे पास सबसे पहला जो स्टेप होएगा वो क्या होएगा कि मैं अपने पानी को स्टैंडिंग ऐसे ही स्टैंड ऐसे ही रखूंगी। आई विल नॉट लाइक इसको टच नहीं करूंगी, इंटरफेयर नहीं करूंगी, ताकि जो हैवी मटेरियल है दे विल गेट सेटल डाउन और लाइटर मटेरियल जो फ्लोट कर रहे हैं वो अलग हो जाएंगे। तो मैं दोनों को अलग कर सकती हूँ। लाइटर मटेरियल को मैनुअली वी कैन रिमूव और वी कैन यूज स्क्रीनिंग ऑल्सो। हम स्क्रीन फिल्टरिंग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि ऊपर का जो आपका मटेरियल है वो निकल जाए और नीचे का स्लज को भी हम क्या कर सकते हैं, या सेडिमेंट जो हो गया नीचे जो सेटल डाउन कर गया हैवी मटेरियल, उसको भी मैं फिल्टर कर सकती हूँ। सो आई बिलीव नाउ यू कम टू नो द टर्म सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या है। सेडिमेंटेशन है जब तुम पानी को स्टैंड रखते हो फॉर लॉन्ग पीरियड, फॉर 24 आवर्स, फॉर 48 आवर्स, बिना टच करे। ठीक है, जब पानी स्टैंड है तो धीरे धीरे कुछ मटेरियल, हैवी मटेरियल विल गेट सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दैट इज सेडिमेंटेशन। तो स्क्रीन जो है वो अगर हैवी है तो वो सेडिमेंट कर जाएंगी फॉर श्योर। अगर कोई हल्की चीज है इट विल गेट फ्लोट ऑन वाटर, तो अगर वो फ्लोट करेगी हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, तो दैट इज फिल्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पे डिस्पोजल की बात हुई है, यहाँ पे सेपरेशन की बात नहीं हो रही है। अल्टीमेटली हमें उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, तो सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन वर्क नहीं करेगा। लेट्स डिस्कस व्हाट इज फ्लॉकुलेशन। अभी हमने कोएगुलेशन की बात करी थी। कोएगुलेशन बेसिकली क्या है, आपके वेस्ट वाटर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल है या सस्पेंडेड जो भी मटेरियल है, उसको इकट्ठा करने के लिए हम कोएगुलेंट्स यूज करते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो सेटल डाउन हो जाए नीचे और पानी से अलग हो जाए, उसके लिए हम वो उस प्रोसेस को हम फ्लॉकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, सो फ्लॉकुलेशन जो कोएगुलेटेड मटेरियल है इट गेट सेटल डाउन इन फ्लॉकुलेशन। सो अगेन कोएगुलेशन है या फ्लॉकुलेशन है वो भी आपकी उसको डिस्पोज ऑफ तो नहीं करेगा, वो सेपरेट कर देगा फ्रॉम द वेस्ट वाटर। ठीक है, सो अगर हम स्क्रीन्स की बात करें तो बेसिकली स्क्रीन जो आपकी सेडिमेंटेशन है या फ्लॉकुलेशन है या फिल्ट्रेशन है, ये तीनों टर्म्स जो है वो आपके वेस्ट वाटर के लिए बनी है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, सेडिमेंटेशन, फ्लॉकुलेशन एंड फिल्ट्रेशन। बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्रीन्स, सो स्क्रीन्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। सो स्क्रीन जो है अगर मुझे उसको डिस्पोज ऑफ करना है कंप्लीटली, बट आई गो फॉर इंसिनरेशन। क्योंकि हम लोगों ने वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस में करा था कि अगर मुझे प्लास्टिक को रिसाइकल करना है आई गो फॉर इंसिनरेशन। सो अगर मुझे बायोमेडिकल वेस्ट को मेरे को डिस्पोज ऑफ करना है तब भी मैं इंसिनरेशन करूंगी। इनफैक्ट फॉर सम ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी हम लोग इंसिनरेट ही करते हैं। इंसिनरेशन क्या है, इट इज लाइक इंसिनरेटर्स आर द क्लोज्ड फर्नेसेस जिसमें आप अपना वेस्ट डंप करते हो और उसको आप हीट करते हो एट वेरी हाई टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर कितना, मोर देन 900 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पे तुम अपने वेस्ट को हीट करते हो। इनफैक्ट वो वेस्ट तुम्हारा बर्न हो जाता है और उस पे बर्न होने के बाद अगर प्लास्टिक है तो वो हम रिसाइकल कर लेते हैं क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है, तो वी कैन रीमोल्ड इट किसी भी शेप में। अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें तो एट दिस मच ऑफ टेम्परेचर जितने भी आपके डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं दे विल इनएक्टिवेट। ठीक है, सो इंसिनरेशन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे मैं स्क्रीन्स को डिस्पोज ऑफ कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें मैं हाई टेम्परेचर पे उसको क्या कर रही हूँ, बर्न कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, ताकि वो फिर मेल्ट हो सकता है और उसको वी कैन रीयूज इट। ठीक है, सो आंसर इज डी, इंसिनरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय पायरोलिसिस रेफर्स टू। सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बात करी कि पायरोलिसिस क्या होता है। पायरोलिसिस इज बेसिकली हीटिंग द वेस्ट या हीटिंग द मटेरियल एट हाई टेम्परेचर, डिकम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, सो जिसमें हम लोग हीट देते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं, ट्रीटिंग विद केमिकल बिफोर हीटिंग, नो हीटिंग, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हमने अभी बात करी पायरोलिसिस इज द प्रोसेस जहां पे आपका मटेरियल जो भी है इट इज गेटिंग डिकम्पोज्ड, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है at elevated temperature but in the absence of oxygen. So it is an endothermic process in the absence of oxygen. So answer is D, heating in the absence of air. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners, and we are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who are helping the mentees
for completing and submitting the assignments, for their career development, and even for skilling the personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of Ignutos. Thank you. See you in the next session.